দামের ব্যাপারে ওপেন চ্যালেঞ্জ সাগর ইলেকট্রনিক্স। দেবনাথ হাসপাতালের বিপরীতে বাসুদেবপুর, আরামবাগ। যাচাই করুন আজই। প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্ল্যাট কিনতে চান, তাও আরামবাগ শহরের প্রাইম লোকেশনে? আজই যোগাযোগ করুন মা সারদা কনস্ট্রাকশন, দেবনাথ হাসপাতালের পাশে, বাসুদেবপুর, আরামবাগ। করে নেবেন এই আরামবাগ লোকসভার তথা আরামবাগ জেলা সভাপতি তথা এই পুরসুরার বিধায়ক বিমান ঘোষ মহাশয়। বিমান ঘোষ মহাশয়কে বলবো মোদিজিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে বন্দে বন্দে। এবং মোদিজিকে বরণ করে নেবেন আমাদের এই লোকসভার, আরামবাগ লোকসভার প্রার্থী সম্মানীয় অরূপকান্তি দিগার মহাশয় এবং খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ মহাশয়। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে বন্দে। মোদিজি মোদিজি মোদি 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 মোদি। এরপর আপনাদের সামনে এই অরূপদা বক্তব্য রাখবে তো, বক্তব্য তো আপনাদের ভালোবাসার আরেক নাম চন্দন জুয়েলার্স। চন্দন জুয়েলার্স, আরামবাগ, সদরঘাট, হুগলি। না উত্তরই দেবেন আপনি, বরং বক্তব্য রাখবেন তো। এরপর আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আরামবাগ লোকসভার প্রার্থী সম্মানীয় অরূপকান্তি দিগার মহাশয়। অরূপদাকে তার মূল্যবান কথা রাখার জন্য অনুরোধ করছি। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। নমস্কার। আজকের এই বিশেষ দিনে বিশেষভাবে আমরা খুবই গর্বিত, খুবই আনন্দিত, খুবই সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। আজকের দিনে আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্বের অন্যতম নেতা এবং আমরা যাকে আমরা কাছে পেয়েছি, আমাদের যে বাংলার দুর্দশা, বাংলার যে অবস্থা, আমরা যে সবসময় চোখে জল ফেলছি, আমাদের কষ্ট হচ্ছে, আমাদের বেকারত্ব সমস্যা, আমাদের মাতৃশক্তির সম্মানের সমস্যা, এত কিছু সমস্যার কথা শুনে যিনি আমাদের কাছে সাড়া দিয়েছেন, আমাদের আরামবাগবাসীর কাছে এসেছেন, এইটা আমাদের খুব সৌভাগ্য। ওনাকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, নমস্কার ও প্রণাম জানাই। এই অনুষ্ঠানের কেন্দ্র করে আমরা এই অনুষ্ঠানে পেয়েছি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তথা পুরসুরা বিধানসভার এমএলএ সম্মানীয় বিমান ঘোষ মহাশয়। এছাড়াও পেয়েছি আমাদের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার ইনচার্জ দিবাকর ঘরামি মহাশয়, আছেন আমাদের গোয়াটের বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক মহাশয়, আছেন খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ মহাশয় এবং আমাদের জেলা নেতৃত্ব আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ মহাশয়, জেলার নেতৃত্ব এবং আমাদের মণ্ডল নেতৃত্ব, বুথ লেভেলের নেতৃত্ব এবং আমাদের সংগ্রামী যেসব কার্যকর্তারা আছেন, এত কিছু পরিস্থিতিকে সামাল দিয়েও যারা এসেছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আগ্রহ করেছেন এবং অন্তর দিয়ে এখানে এসে রোদে উপভোগ করে, কাদা রোদ উপভোগ করে আমাদের অনুষ্ঠান শুনছেন, সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, নমস্কার ও গৌরী অভিনন্দন জানাই। আমাদের এই বাংলা ভূমি খুবই উর্বর এবং
উন্নত। তাই আমরা দেখেছি বিশ্বকে পথ দেখানোর জন্য বাংলা থেকে বিভিন্ন ধরনের মুনি ঋষি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এখানকার মানুষের চিন্তা ভাবনা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন। তাই আস্থা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল, আন্তর্জাতিক মানের সমস্ত রকম পরিষেবা। আস্থা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল, নবপল্লী, আরামবাগ। মুনিষীরা এই বাংলা ভূমির নাম রেখেছেন সোনার বাংলা। এই সোনার বাংলায় মানুষ কত কিছু নয় পারে, কত কিছু নয় সৃষ্টি করতে পারে। এই ভূমিতে এমন সময়ে আমরা একটা এসেছি, এই নির্বাচন, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন, এই নির্বাচন পদ্ধতি যেভাবে এসেছে আমরা লড়তে যাচ্ছি এখানকার তৃণমূল পার্টির সাথে, যে পার্টির সমস্ত কর্মীরা দুর্নীতিগ্রস্ত, অপরাধগ্রস্ত, কারবানিতে যুক্ত। তার সাথে আমাদের লড়তে হচ্ছে এই সোনার বাংলা। আর সোনার বাংলার নাম ধারণ করে যে আমরা বলি, সেই নামকে কলুষিত করেছে এই দুর্নীতি দিয়ে। তাই আমরা আদর্শবাদী বিজেপির যেসব কার্যকর্তা আছে, আমরা প্রতিজ্ঞা নিয়েছি এই দুর্নীতিযুক্ত পার্টিকে আমরা উৎখাত করব এবং আদর্শবাদী বিজেপি পার্টিকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করব এবং ভারতবর্ষকে আত্মনির্ভর ভারতের আত্মরূপ করব। তাই আমরা প্রতিজ্ঞা যেভাবে নিয়েছি সেভাবে আমরা এগিয়ে যাব এবং সর্বোচ্চ স্থানে নিয়ে যেয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন এই ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে 1 নম্বর স্থান অধিকার করবে। আমাদের মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজি সেই পথেই হাঁটছেন। আস্তে আস্তে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষকে 1 নম্বর জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। দেশকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, দেশের নাগরিককে সুরক্ষিত রাখার জন্য, দেশকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যেভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন দিন অহরত, তাই তার ফলস্বরূপ আজকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা এই নেতা অংশগ্রহণ করে আমরা নিজেকে গর্বিত মনে করছি। তাই আমি বলবো, বিশেষ কিছু আমি বলছি না, আজকে সময় দীর্ঘায়িত করছি না। সকলকে শ্রদ্ধা ভক্তি নমস্কার এবং বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছেন সকলকে যথাযথ সম্মান জানিয়ে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আমাদের মধ্যে খুব গর্বের দিন আজকে, এই পুরসুরার মাটিতে এই প্রথমবার দেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী পা রেখেছেন পুরসুরার এই পবিত্র ভূমিতে। তাই আরামবাগ লোকসভা এবং পুরসুরার বাসী হিসাবে আমি আমাদের বিশ্ববরেণ্য নেতা মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। বক্তব্যের কোনো জায়গা নেই। এখন আপনাদের সামনে যার অপেক্ষায় দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন, আমাদের দেশের বিশ্ববরেণ্য, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিশ্ববরেণ্য নেতা মাননীয় মোদীজি আপনাদেরকে সম্বোধন করবেন। तारकेश्वर महादेव की, तारकेश्वर महादेव की। तारक बम, तारक बम, तारक बम। आरामबाग बसीदेर के আমার নমস্কার জানাই। कुछ दिन पहले ही मैं यहां विकास के उत्सव के लिए आया था। तब रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति, इससे जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आप सबको सुपुर्द किए थे। आपके इस सेवक ने 10 वर्ष में
आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं फिर से आप सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, 24 का चुनाव ये बंगाल के विकास के लिए, बंगाल की संस्कृति की रक्षा के लिए और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही अहम है। टीएमसी के लोग समझते हैं कि बंगाली संस्कृति पर उनका एकाधिकार है, लेकिन वास्तविकता क्या है? ये मां दुर्गा और मां काली की भूमि है। लेकिन यहां लोगों की आस्था पर पहरा लगाया जाता है। यहां राम मंदिर का नाम लेना अपराध हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? बोले जय श्री राम। टीएमसी की चले तो बाबा तारकेश्वर धाम पर भी ये रोक लगा दें। ये धरती गुरुदेव टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और सत्यजीत रे की धरती है। लेकिन यहां टीएमसी के राज में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। यहां ऑपोजिशन को, विपक्ष को, जागरूक नागरिकों को, स्वतंत्र आवाज को दबाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हालत तो ये है कि कोई हंसी मजाक करे, कोई हंसी मजाक का पोस्ट कर दे सोशल मीडिया में, कोई कार्टून शेयर कर दे तो उसको भी धमकाया जाता है, उसका जीना मुश्किल कर दिया जाता है। अरे बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, ये स्वामी विवेकानंद और सुभाष बाबू की भूमि है। लेकिन टीएमसी सरकार देश के प्रति उनके विचारों की धज्जियां उड़ा रही है। बंगाल की पहचान राजा राम मोहन रॉय से होती है। ये टीएमसी वालों का चले ना तो राजा राम मोहन रॉय का जो नाम है उसमें से राम भी निकाल दें, ये ऐसे लोग हैं। लेकिन यहां महिलाओं की स्थिति लगातार खराब हो रही है। जिस भूमि पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुष, महान व्यक्तित्व रहे हो, वहां की शिक्षा व्यवस्था आज खस्ता हाल है। भर्तियों में घोटाले होते हैं।
ये धरती डॉक्टर बीसी रॉय की धरती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं उसकी हालत बदतर है। इसी पावन भूमि ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान सपूत दिए हैं, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे उनके महान विचारों की अनदेखी की जा रही है। टीएमसी के व्यवहार में, टीएमसी के काम में बंगाल की संस्कृति की एक झलक भी नजर नहीं आती है। भाइयों और बहनों, वोट बैंक को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। टीएमसी तो घोर एंटी एसटी है, घोर महिला विरोधी है। ये अपने एससी एसटी नेताओं के साथ तक बहुत बुरा व्यवहार करती है। बागदी और बाउरी समाज के लिए ये कैसी कैसी बातें करती हैं, ये आपने देखा है। टीएमसी की मूल पार्टी कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश के टुकड़े किए, लेकिन जो मतवा शरणार्थी वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं, उनको इन्होंने बुला दिया। जब मोदी सरकार सीएए जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण कानून लेकर आई, नागरिकता देने वाला कानून लेकर आई, नागरिकता देने की गारंटी लेकर आई, तो ये लोग डराने धमकाने में जुटे हैं, अफवाहें फैलाने में जुटे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं। मैं सभी शरणार्थी साथियों से कहूंगा कि सीएए ये संविधान की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। और टीएमसी वाले भी कान खोल करके सुन लो, अगर इस प्रकार की बातें हरकत की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साथियों, तुष्टीकरण में डूबा कांग्रेस, टीएमसी, लेप, ये सब चट्टे बट्टे अब एक और साजिश रच रहा है। अब ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। इनकी सारी पोल पट्टी चारा घोटाले के दोषी नेता ने खोल दी है। ये चारा घोटाले जो जेल में पड़े थे, अभी तबीयत के कारण जेल से बाहर आए हैं, वो कहते हैं
कि एससी, एसटी, ओबीसी संविधान ने जो आरक्षण दिया है ना, वो पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी ठेकेदारी में, यहां तक कि कांग्रेस ने खेलों में भी माइनॉरिटी कोटा देने की बात कही है। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, वंचितों का जो अधिकार है, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। साथियों, केंद्र सरकार अगर आपके हित में जो योजना बनाती है, उसे भी ये टीएमसी सरकार रोक देती है। मोदी एक बहुत बड़ा अभियान चलाता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देश के इन जिलों में बड़ी संख्या में एससी, एसटी समाज के लोग रहते हैं। इंडी गठबंधन की सरकारों ने इन्हीं जिलों को सबसे पिछड़ा बनाकर छोड़ दिया था। मोदी ने कहा, ऐसा नहीं चलेगा। मोदी ने कहा, अब ये जिले पिछड़े नहीं रहेंगे, ये जिले विकास में सबसे आगे आएंगे। मोदी ने देश के ऐसे 110 से ज्यादा जिलों में खूब मेहनत की। मोदी ने सबसे अच्छे अफसर भेजे। दिल्ली से लगातार कामकाज की जांच हो रही है। अब इनमें से बहुत सारे जिले अपने राज्यों के दूसरे जिलों से भी आगे निकल रहे हैं। ये जिले अब पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, सड़कों के निर्माण में, पानी की सप्लाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी अनुभव से सीख लेकर अब मोदी ने एस्पिरेशनल ब्लॉक अभियान भी शुरू किया है। लेकिन साथियों, आपकी सुविधा का ये अभियान, आपकी भलाई का ये अभियान, आपके जिंदगी में सरलता आए, सुविधा आए, आपके बच्चों के सपनों को अवसर मिले, इसलिए ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम चल रहा है, इतना शानदार प्रोग्राम है, दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। लेकिन ये टीएमसी ने हमारे प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उसका बायकॉट कर दिया है, लागू ही नहीं कर रही है। मतलब कि ये आपकी विरोधी है, जनता की विरोधी सरकार है। टीएमसी सरकार एससी समाज के विकास से चिढ़ती है, इसलिए वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। साथियों, भाजपा सरकार एससी समाज के हितों को प्राथमिकता देती है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो एससी समाज कल्याण के लिए सालाना सिर्फ
40,000 करोड़ का बजट देती थी। भाजपा सरकार, मोदी सरकार आज 1,40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बजट एससी डिपार्टमेंट को देती है। पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने एससी समाज के 5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी है। एससी समाज के बच्चे अपना कारोबार शुरू कर सके, अपने स्टार्टअप शुरू कर सके, इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी बनाया है। साथियों, टीएमसी के लिए बांग्ला मस्तान, भाईपो बांग्लार मेये से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीएमसी जिस तरह बंगाल को लूट रही है, वो एक महापाप है। शिक्षक भर्ती घोटाला, पोंजी स्कैम, कोयला स्कैम, चिटफंड स्कैम, राशन स्कैम, इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है। टीएमसी ने हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को भी नहीं छोड़ा है। टीएमसी वाले धान किसानों को मंडियों में लूटते हैं। ये किसानों का धान कम तोलते हैं और पैसा भी कम देते हैं। ये तो मोदी पीएम किसान सम्मान निधि भेजता है, उससे मेरे किसान भाइयों को कुछ राहत होती है, वरना तो बंगाल के किसानों को बर्बाद करने में कोई कसर टीएमसी ने नहीं छोड़ी है। साथियों, मोदी सरकार इथेनॉल और बायोफ्यूल प्लांट भी लगा रही है। धान किसानों को भी इसका फायदा मिलना तय है। भाजपा ने अनाज के भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना शुरू की है। अब हम आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों के लिए विशेष क्लस्टर बनाने वाले हैं, जहां सब्जियों की स्टोरेज की सुविधा होगी। मैं किसान साथियों से कहूंगा, एटा तो शुद्ध ट्रेलर, एटा तो शुद्ध ट्रेलर, एखन तो अनेक किछु कोरा बाकी। भाइयों और बहनों, यहां रेलवे के इतने काम हो रहे हैं, आने वाले 5 साल ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वर्णिम कालखंड होने वाले हैं। आपको आरामबाग से मेरे साथी श्री अरूप कांति दिगर जी को भारी वोट से जिताकर दिल्ली भेजना है, और आप जब कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना, तो वोट सीधा सीधा मेरे खाते में जाएगा, मोदी के खाते में जाएगा। याद रखना, ये चुनाव हिंदुस्तान की सरकार बनाने का है। ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे
घर घर जाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। घर घर जाकर के कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है। मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শিক্ষক অরূপ কান্তি দিগারকে পদ্মফুলে বোতাম টিপে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। দেশের স্বার্থে, সবার স্বার্থে আরও একবার মোদী সরকার। বিবাহে বাধা, দাম্পত্য কলহ, ব্যবসা বাধা, চাকরির সমস্যা, বিদ্যায় বাধা, প্রেমে ব্যর্থ, সাংসারিক অশান্তি, মাঙ্গলিক দোষ, কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সহজ ও গ্যারান্টি সহ সমাধান পেতে আসুন শ্রী অজয় শাস্ত্রীর কাছে। অগ্রিম নাম নথিভুক্ত করতে ফোন করুন 9933854984। চুড়ি, তুমি নারীর প্রিয় সব উৎসবে বাউটি, বালা, চূড়, মান্তাসা দেখলাম মন ভরে। জনপ্রিয়তায় আজও সেরা মিনা করা ঝুমকা, কানে দিলাম কানপাশা, পূরণ হলো সব আশা। হাতের আঙুলের আংটি নানা ডিজাইনে পাবে, ঐতিহ্যবাহী নেকলেস আজও মনে ধরে, জড়োয়া সীতাহার সবার নজর কাড়ে। তাই তো বিয়েতে পেলে এত গয়না সবার মনে ধরে। নতুন সম্পর্কের শুরুটা আজও সোনার মতো খাঁটি। যখন সেরা জিনিস, সেরা কালেকশন, সাথে ন্যায্য দাম, তবে উন্নতর কেন? অর্ধশত বছরের বিশ্বাস, আপনাদের ভালোবাসার আর এক নাম চন্দন জুয়েলার্স, আরামবাগ, সদরঘাট, হুগলি।